So today I am going to talk about a very important aspect of leadership, that is the bearing. Bearing is something which is depicted by your physical, carrying yourself, as also how you conduct your affairs. And this is got nothing to do with strength. It is nothing to do with the strength, physical strength. You can't say that a person has to be a bodybuilder or he has to be a weightlifter or an athlete, only then he can have a good bearing. There are various people you would have seen who are not of the ideal body weight, or they are frail, they are underweight, but the point is that they are carrying themselves and conducting themselves in such a manner that they have a riveting presence. People will get riveted to their words, to their personality, and when these people walk into a room, they will get eyeballs, as they say. They will get the attention. So that bearing is having many aspects, and that aspect is of creating an awe or a halo around the leader, which makes him attractive, which makes him impressive, which makes him, which exudes confidence. And the people want to be with you, they want to work with you, they want to follow you, and they are confident that whatever you are saying will be true. Sorry, my fault. Not my fault, actually. Okay, so this is about composure and confidence. The composure is how you maintain yourself when, I have seen at times, you would have also noticed, when you are giving a presentation and suppose your computer malfunctions, or somehow in olden times the projector used to burn off, or the bulb will go, or the slides will be this thing out of focus, or something like that happens. So the speaker or a presenter, if he loses confidence, if he loses calm, if he loses, he starts becoming fidgety, what kind of an impression it will have? Similarly, when you behave in a composed and calm manner, your team also will remain composed and calm. How do you develop this essential quality is what I am trying to talk about today. So the first part is you should have inner strength. Inner strength का मतलब है कि आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, और वो विश्वास जो है आपके अपनी कैपेबिलिटी के ऊपर होना चाहिए, और अपनी टीम की जो काबिलियत है या जो टीम आपको करके दे सकती है उसके ऊपर होना चाहिए. और ये ऐसे ही मतलब टिक मार्क करने से नहीं होता कि वेल डन, शाबाश, यू आर वेरी गुड एंड आई हैव फेथ इन यू. ये ऐसा हवा में बात करने से ये आपको अंदर से ताकत नहीं देगा. अंदर से ताकत तभी देगा जब आप अपनी टीम को, अपने आप को अच्छी तरह से जानते हो, आप एनालाइज करते हो, और आप अपने आप को तैयार करते हो कि भाई अगर कोई जरूरत पड़ती है तो हमारे को क्या चीज की कमी हो सकती है और उस चीज को हम कैसे पूरा कर सकते हैं. तो अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी कैपेबिलिटी को, अपनी वीकनेस को आपको अगर पता है तो तभी आपको ये इनर स्ट्रेंथ मिलेगी कि हाँ भाई ये काम मैं कर लूंगा, और कुछ भी होगा देखा जाएगा, देयर इज नो प्रॉब्लम. सो जब आप इस तरह का काम करते हैं तो आपको फिर
कोई बीच में गड़बड़ आती है, कोई हल्का फुल्का सा हिकअप आता है, ठोकर लगती है, तो यू डू नॉट गेट डिस्टर्ब. So this is something which you have to develop. And the second point is composure. Composure will come when you know कि भाई मैं क्या कर सकता हूं. पैनिक करने से तो कुछ होगा नहीं. अगर मान लीजिए आपका आई रिमेम्बर एक बार क्या हुआ, हमारा ब्रिगेड में देयर वाज अ प्रेजेंटेशन. And because of certain problems in the computer, I'm talking of 2005 or 4 or 5. So the computers had just been not very common. The Wi-Fi strength, मतलब अगर आपको 256 MB मिल जाती थी तो बहुत ज़्यादा माना जाता था कि भाई ये तो बहुत तगड़ी स्ट्रेंथ है. और आर्मी एरिया में वैसे भी वो हमारे नेटवर्क्स वर डिफरेंट, एंड सिविल में दे वर मोस्टली not there, especially in the interiors of J&K. So we were working, and we had to give a presentation, and the presentation was being worked upon in my ops room in the battalion, and then we had to go. So I told them, okay, you come and you get the presentation, and then I moved to the brigade headquarters. Now these people, they had a problem in copying it. They could not copy somehow, it was very funny. So we are sitting in the brigade ops room, and I think the GOC was present, commander was there, and all the CO had to give this thing. There was some war game, and these fellows could not copy the presentation and bring it in a pen drive, or they tried to write a CD, they did not. Pen drive, something went wrong. So I just told them, I can just pick up the bloody computer, CPU, and bring it and fix it to the projection system. So, the whole brigade of 3-4 battalions and commanders and div staff and everybody was watching one Bihar getting a bloody CPU into the ops room, fixing it up, and then running the presentation. So the point is, if I had panicked, if I had started shouting, if I had become, demoralized or worried कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या, so it doesn't help. So you have to have that composure. You have to have the kind of belief, and the last minute it happened, and then everything was all right. In fact, I must have given the best presentation of my life as a CO. And the people who are responsible for this, my 2IC and one youngster and one more person, they were shitting bricks कि अब पता नहीं क्या होगा, कितनी गाली पड़ेगी, क्या होगा, क्या नहीं होगा, बेइज्जती हो जाएगी, ये होगा, वो होगा, कैरियर खराब हो जाएगा. And nothing like that happened. Everybody is doing well. In fact, that youngster who was working on the presentation is a brigadier now. He is commanding a brigade, and I am sure he has done higher command, so he will become a general also. So these kind of composure under pressure, belief in your team, and mastering your body language helps you a lot in your own performance, and also it gives a confidence to your team that they do not panic and वो situation को संभाल लेते हैं. So this is something which you must understand. Now, mastering the body language. This is about standing alert, tall, shoulders back, chest up, stomach tucked in, and when you walk confidently. When you talk to people, you look in their eyes. When you shake hands, you give a bloody firm handshake. And this is what, and when you talk with gusto. There should be no, आवाज में कंपन नहीं होना चाहिए, कोई आपको डर चिंता नहीं होनी चाहिए. वो तभी होगा जब आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस है और आप ये कहते हो कि भाई मैं जो बोल रहा हूं मुझे पता है, और जो मैं बोल रहा हूं वो मेरे से अच्छा साला कोई जानता नहीं.
तो जब ये बात होगी तो फिर आपको कम्युनिकेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. कम्युनिकेशन इज नॉट ओनली वर्ड्स. I think, I don't know, there's some research, they say that I think only 30% is communication by words. 70% is by your behavior, your eye contact, your confidence, your gestures, your tone. So this is what I want to say. Please maintain your body in a very positive spirit and have faith in yourself. And as they say, you are all God's creatures. अभी आपने कभी चिड़िया को देखा है कि खाना घर ले जाके घर में अपने घोंसले में इकट्ठा करके रखती है? नहीं रखती ना. जितना उसको चाहिए होता है वो अपना ले जाती है, और उसको पता है भी शाम को खाना है तो फिर कहीं ना कहीं मिल जाएगा. पानी का तो कोई कप भर के अपने बच्चों के लिए नहीं रखती ना. तो आपको क्या डर है भाई? You will get what you deserve. You will get what you need. You will get what is required by you and your family. अपना हिम्मत से काम करो यार. डरने क्या जरूरत है? गलत काम अगर आप नहीं कर रहे हो तो आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है. और अगर आपने अपना मेहनत से काम किया हुआ है तो जो आपको नॉलेज है वो आप किसी को भी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ दे सकते हो. तो खड़े होकर बात करने में भी कोई हर्ज नहीं. चिट्ठी पत्री लिखने में, लिख करके कोई केस पुटअप करने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए. सो ये बातें अगर आप ध्यान रखते हैं तो आधे से ज्यादा प्रॉब्लम वैसे ही खत्म हो जाती है. ठीक है ना. एंड देन देयर हैज टू बी अ प्रेजेंस. प्रेजेंस का मतलब क्या होता है कि आप बात कर रहे हैं या आपकी टीम बात कर रही है तो यू बी प्रेजेंट इन द सेंस सुनो वो क्या बोल रहे हैं, क्या बातचीत हो रही है. उस समय में डे ड्रीमिंग करने से कोई बातचीत उससे आगे चलता नहीं है. और जब आप उनकी बात सुनते हो, आप उनकी तरफ देख रहे हो, उनको एनकरेज कर रहे हो, उनकी तरफ ऐसे झुक के इंटरेस्ट शो कर रहे हो, तो उनको भी कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ ये भाई लीडर मेरी बात सुन रहा है. तो अगर आप उसकी बात सुन रहे हो तो उसको ये भी लगता है कि हाँ भाई मैं इंपॉर्टेंट हूं, मैं जो बोल रहा हूं वो मैं इंटरेस्ट से मैं बोल रहा हूं तो अगले को इंटरेस्ट आ रहा है. इसका मतलब आई एम समथिंग, और आई एम डूइंग समथिंग राइट, और आई एम सेइंग समथिंग राइट. सो बी प्रेजेंट. दिस इज ऑल्सो, अब कई लोग हैं वो मोबाइल में लगे रहेंगे. एंड देन यू नो देयर इज अ फैशन ऑफ सेइंग कि जी हम ना वी कैन डू मल्टीटास्किंग. इसका बहुत बड़ा फैशन चला हुआ है आजकल, काफी दिनों से चल रहा है. बट ये जो बात है ना ये बकवास है. यू कैन नॉट मल्टीटास्क. ये अपने आप को भुलवा रखने वाली बात है, अपने आप को धोखा देने वाली बात है, और अपने आप से इनजस्टिस वाली बात है. यू कैन नॉट मल्टीटास्क. यू कैन डू ओनली वन थिंग एट अ टाइम एंड डू जस्टिस टू वन थिंग ओनली एट अ टाइम. सो जो काम कर रहे हो वहां पे रहो ना. अगर आप मीटिंग में हो तो मीटिंग में रहो, उस समय घर की क्यों सोच रहे हो? घर में हो तो घर में रहो ना, तो उस समय मीटिंग की क्यों सोच रहे हो? अगर बच्चों से बात कर रहे हो तो उस समय आप अपना बिल की और सास की और ससुर की और भाइयों की और झगड़े की और प्रॉपर्टी की क्यों सोच रहे हो? सो बी प्रेजेंट. दैट इज ऑल्सो समथिंग विच विल हेल्प यू. एंड यू नो एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं, और वो है ऑथेंटिसिटी. ऑथेंटिसिटी का मतलब है कि भाई आप ईमानदारी से अपने आप को तैयार करें, जेन्युइनली आप बात करें, फ्रॉड बातें ना करें, और एक झूठा प्रोजेक्शन अपने सामने ना करें. अभी आप लोगों ने कई लोग देखे होंगे जो अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं, अपने आप को बहुत अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छी तरह से बातचीत करेंगे, मतलब फैशनेबल सेंट सूंट लगा के घूमते रहेंगे, एंड नेटवर्किंग भी होगी, और वो एक तरह से अपने आप को प्रोजेक्ट करेंगे कि हम बहुत कैपेबल लीडर हैं, बहुत कॉन्फिडेंट हैं. लेकिन वो कभी ना कभी वो स्लिप करके अपनी जो इनसिक्योरिटी है
अपने जो सुपीरियर्स के बारे में क्रिटिसाइज करना, या अपने कॉम्पिटिटर्स के सामने ये दिखाना कि भाई हम जो है आपसे ऊंचे हैं, नीचे हैं, या किसी तरह से ऐसी बातें करने से वो असलियत पता चल जाती है कि असल में ये आदमी फ्रॉड है और ये बाहर से अपने आप को बहुत कैपेबल लीडर दिखा रहा है, लेकिन कोई भी जो है वो असलियत में वो अपने आप में उसको विश्वास ही नहीं है कि भाई मैं ऐसा अच्छा काम कर सकता हूं। तो ऑथेंटिसिटी जो है ये आपको एक बहुत बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स है। और अगर मैं ये कहूं कि एक जेन्युइन ह्यूमन बीइंग के लिए ऑथेंटिक होना बहुत जरूरी है। तो चाहे आप उसको कहें कि आप सच बोलें, आप उसको कहें कि भाई आप लॉ को ओबे करें, चाहे आप उसको बोलें बड़ों का आदर करें, चाहे आप उसको बोलें ऑर्गेनाइजेशन के विचार को ख्याल में रखें, आप या बोलें कि सर्विस बिफोर सेल्फ, एंड जो भी आप कुछ किसी तरह से कहना चाहें, लेकिन ऑथेंटिसिटी जो है वो होनी बहुत जरूरी है। अभी जो है मैं आपको मैं कोई ऐसा एग्जाम्पल देना चाहूं तो मैं एक सेंटेंस में बोल सकता हूं कि अगर आपने बेयरिंग, चाहे वो फिजिकल बेयरिंग है, प्रेजेंस ऑफ माइंड है, टॉलरेंस फॉर एम्बिग्यूटी है, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स आप बेयरिंग के बारे में इमेजिन कर सकते हैं, और अगर वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आप अगर एक आदमी में देखना चाहें तो मेरे हिसाब से उस आदमी का नाम है फील्ड मार्शल SHFJ मानेकशॉ। अब उनके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा इससे ज़्यादा, क्योंकि कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। और अगर आप उनके बारे में कुछ भी चाहते हैं जानना तो प्लीज़ उनके बारे में पढ़िए, और उनकी फ़ोटो देखकर ही आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज़ बेयरिंग। और उनका मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने उनके मुंह से सुना हुआ वीडियो मैंने देखा हुआ है, एंड वो जो है मैं आपको बताना चाहूँगा कि उनका एक NCO था, उसने कुछ गड़बड़ करी, कोई सिपाही या कोई लांस नायक जो भी था, तो उसको उन्होंने एज अ कंपनी कमांडर सजा दिया, उसको कुछ क्वार्टर गार्ड में डाला या तनख्वाह काटी या कुछ जो भी उसको सजा मिली। तो वो जब आए वहां पे वापस एक्सरसाइज वगैरह करके शाम को अपने पास पहुंचे, तो उनका जो JCO था उसने कहा सर आज आप ना आपके यहाँ पे एक्स्ट्रा गार्ड लगाएंगे। उन्होंने कहा क्यों गार्ड लगा रहे हो भाई? मेरे टेंट के बाहर फील्ड में थे कहीं जंगल में। तो कहता सर वो सो एंड सो आदमी है जिसको आपने सजा दी थी, वो इधर उधर गुस्से से घूम रहा है और वो कह रहा है कि मैं आपको जो है गोली मार दूंगा, साहब को रात को मैं जाकर के उनको मेजर साहब को गोली मार दूंगा। तो उसने कहा ऐसा करो, उसको बुलाओ। तो उन्होंने उसको बुलाया और वो JCO खड़ा हुआ था। तो मानेकशॉ साहब ने अपनी पिस्टल निकाली, उसको पकड़ा ली, बोला मैंने सुना है तो तू मुझे गोली मारना चाह रहा है, तो तेरे में हिम्मत है तो मार मेरे को गोली, अभी ले पकड़ पिस्टल, इसके अंदर मैगजीन लगा हुआ है, मार मेरे को गोली। तो वो खैर ऑब्वियसली तो उसने रोया धोया, माफी मुफी मांगी। फिर उन्होंने उसको बोला रात को जो मेरे टेंट के बाहर गार्ड लगेगी वो यही आदमी गार्ड करेगा, और वो हथियार लेके मैगजीन लेके मेरे गेट के बाहर, मेरे टेंट के फ्लैप के बाहर खड़ा रहेगा। ही विल बी द गार्ड ऑफ माई नाइट ड्यूटी, मेरा नाइट सेंट्री वो रहेगा, एंड नोबडी एल्स। और कोई उसको चेक नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा, ये मेरा गार्ड है। सो द पॉइंट इज के वो शांति से रात भी निकल गई, एंड दैट फेलो बिकम हिज मोस्ट लॉयल सबॉर्डिनेट। एंड देन मानेकशॉ साहब ये बोलते हैं कि आप ये ना समझना कि मुझे डर नहीं लग रहा था कहते मैं सारी रात सो नहीं पाया। लेकिन द पॉइंट इज कि यू हैव टू कम्युनिकेट दिस टू योर टीम, यू हैव टू टेल देम कि भाई साहब देयर इज नो प्रॉब्लम, मुझे जो है ना कोई चीज अपसेट नहीं कर सकती।
So when these kind of stories they travel around, they make a normal person a legend. So do you want to be a legendary leader or not? Decide for yourself. Take care. Thank you very much. And Jai Hind.